भवति यदनुभावात् ईडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचस निधत्तां सन्निधिं मानसे च। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। सुप्रभातम सुप्रभातम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। I am happy to be part of this Gita Yajna in the College of Arts and Commerce in the vicinity of Kandivali Education Society in Mumbai. So I am happy to see the young minds, young faces, and of course Krishna was very young, and the dialogue between two youth cannot be placed before the old people, right? Yes, this is a dialogue of two young minds. And you know the context of Bhagavad Gita? The context of Bhagavad Gita is conflict and crisis. Conflicts and crisis. This is the context. Bhagavad Gita is a text which works in the context. You need to understand the text in context. You cannot take the text out of context and give some meaning to it. People would say Gita is for moksha. And again the question comes, what is moksha? Moksha is liberation. Liberation means it's not within the life, right? People would say that. People would say when the life ends, liberation starts. No, it is not correct. You know, how many of you want to be very free? Free today? How many of you? Anyone wants to be in trouble, problem, crisis, conflicts? Especially, you know, all of us want freedom. Oh, Sunday, you know, long sleep, and nobody would, you know, ask question. माँ तो बोलती रहती है घर में,
तो माँ का स्वभाव है. Today at least one day enjoyment, and all of you have come, and chosen a different day. People are enjoying around, somebody is sleeping, somebody is enjoying television, somebody is playing mobile, and all of you have come here. I acknowledge, I deeply acknowledge. Guys who did not clap, please clap for yourself once again. It is for nobody else, it is for yourself. First of all, let us acknowledge ourselves. Let me acknowledge myself. And this acknowledgement will give you in a big way. If you don't acknowledge yourself, you don't acknowledge the people around me. For example, once again, I want you to acknowledge the person next to you, because he is also joining you in this entire creation of this entire Gita. Acknowledge the elders here. Acknowledge, you should acknowledge me also. Because I have come all the way. I have come all the way, living all the other works. Why? Not to teach you, but to really get something from you. The energy I receive, the energy battery should get charged, no? Mobile, keep for charging. This is charging place for me. Really, I am telling you the fact. Whenever I have, many places we go, day in and day out, lot of energy drains are there. We drain energy with ministry, with administrative officers, with my officers. Every day people come with so many problems and challenges and crises. Today, in my university, exams have started, crisis started. I switched off. I switched off my mobile. I'm sitting here with you only to create something for all of us. Ready? Fully participate? Yes. Good, thank you. Which language would you prefer? Which language would you prefer? Hindi, English, both? Both? One? Hindi. ठीक है, हिंदी में बात करेंगे. मराठी कळत आहे? हो, कळत आहे. मैं मराठी में बात नहीं करूंगा, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड मराठी. यू कैन स्पीक इन मराठी. माझा नाव श्रीनिवास आहे. ओके. नाउ coming to Bhagavad Gita. Lord Krishna spoke to Arjuna in which language? Not in English, definitely. Right? हिंदी में बात क्या होगा? नहीं. किस पे बात किया होगा? अच्छा, संस्कृत पे बात किया है. So one thing I tell you, I too don't know what language was spoken there, but this is composed by Vyasa. Bhagavad Gita is a composition of Vyasa, not Krishna. Krishna spoke to Arjuna in the battlefield. उन्होंने बात किया, उन दोनों में संवाद चला. उस संवाद को रिकॉर्ड करके उसको डॉक्यूमेंटेशन किया व्यास जी ने. So who is the author of Bhagavad Gita? Yes. And who is the writer of Bhagavad Gita? You know, Ganapati. Yes, Ganapati. Yeah, well, आप गूगल है. तो गणपति इसका राइटर है और ऑथर है, व्यास जी है. लेकिन उसके पीछे जो आइडिया है, थिंकर है, जिसके आइडिया यहाँ कंपोज किया गया है, वो भगवान श्री कृष्ण है. उसके लिए कंट्रीब्यूटर कौन है पता है? ग्रेट कंट्रीब्यूटर. आइडिया तो भगवत गीता का, कृष्ण का है, लेकिन उसके कंट्रीब्यूशन जो दिया है कौन है? यस, राइट. यदि अर्जुन नहीं होता, गीता नहीं होती.
आप नहीं होते तो यहाँ गीता का यज्ञ नहीं होता। गीता है, आप है, तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। You know, one story, let me begin with the story. महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, सब शांति ही शांति है और सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं। राजा धर्मराज राज्य कर रहा है और सभी उनके अनुज अपने अपने कर्तव्य में रहे हैं। एंड यू नो, एज यूजुअल they wanted to go for a break. अभी आ गया ना, विंटर आ गया, विंटर एंड में सेमेस्टर ब्रेक होता है। सेमेस्टर ब्रेक में कहीं जाना है तो बाहर जाते हैं लोग, एंजॉय। उस दिन में क्या होता है, कभी कभी रिट्रीट करने के लिए जब जाते हैं और रिट्रीटमेंट पूरा दिन यदि आप खेलते रहेंगे तो रिट्रीट नहीं होगा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, मतलब एक डिस्कशन होना चाहिए। तो उन लोगों ने सोचा हम रिट्रीट के लिए कृष्णा को लेके जाएंगे, हमारे फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली को बुलाएंगे, थोड़ा शाम को खेलेंगे करेंगे, इस दिन में कुछ दिन तक हम भगवद गीता सुनेंगे। क्योंकि उस समय जब युद्ध हो रहा था तो केवल अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हो गया और अर्जुन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो भगवद गीता चली गई। किसी को पता नहीं क्या उन्होंने बात किया, तो इसलिए सब लोगों ने कहा हमें भी भगवद गीता सुनना है। और क्या है इसमें, भगवद आइडिया क्या है? हमें अभी तो थोड़ा शांति ही शांति है, जैसे रिटायरमेंट के बाद लोग भगवद गीता सुनते हैं, तो रिटायर हो गए, अभी तो आराम से सुनना है। तो कृष्ण को एक लेटर लिखा। उस दिन व्हाट्सएप नहीं था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा, तो अभी आप आ जाओ, हम थोड़ा भगवद गीता सुनना चाहते हैं, एक वर्कशॉप करेंगे। अभी 15 दिन नहीं, एक 7 दिन का वर्कशॉप करके आप भगवद गीता सुनाइए हमें। यू नो व्हाट श्री कृष्ण सेड? इसे मूड नहीं है, मूड इज नॉट, नो मोर मूड। यू नो व्हाई? भगवद गीता इज meant for somebody who is in crisis and whom Krishna loves. And he said, I love you, I love all of you, Pandavas. You are, लेकिन अभी क्राइसिस नहीं है, आप आराम से आए हो, आराम से बैठकर सुनने के लिए भगवद गीता नहीं है। आप यदि टेंशन में आओगे तो मैं आ जाऊंगा भगवद गीता सुनाने के लिए। आप ये बताइए, आप यहाँ जितने भी बैठे टेंशन में नहीं हूँ, आराम से हूँ, कितने लोग हैं? कोई टेंशन नहीं है। वाह, आपको भगवद गीता जरूरत नहीं है। भगवद गीता का जरूरत उनको है जिनको टेंशन है। टेंशन है, कितने लोग हैं यहाँ पर? हाँ, गुड। थोड़ा टेंशन है और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट है फ्रेंड्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, भाई बहन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग है कुछ लोग को होता है। और कल ठीक था, आज ठीक नहीं है, आज ठीक है, कल ठीक नहीं है। तो ये लाइफ इज फुल ऑफ क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन्स। एंड फ्रेंड्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया तो थोड़ा सा उदास लगता है नहीं लगता है। 2 दिन चले जाते हैं ऐसे, मूड नहीं है और एकाग्रता नहीं है। कितने लोगों को फोकस नहीं है, लगता है लाइफ पे फोकस नहीं है। सच बताओ, कृष्णा देख रहा है, कृष्णा देख रहा है। सच बताएंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और तीसरा क्वेश्चन है, जो लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं, किसको क्वेश्चन नहीं है? बताओ, क्वेश्चन नहीं है। सब जॉब मिल गया मुझे, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये भी नहीं मिला? अच्छा, क्वेश्चन है, क्वेरी है, क्वेस्ट है। ये लाइफ है। Life is like this. Life is designed by questions, queries, quests, and a lot of C's: confusion, crisis, lot of things.
and then everyone needs Bhagavad Gita. Bhagavad Gita will not give you any answer. ये आपको पहले बता रहा हूं, आपको आंसर नहीं देंगे. आश्चर्य हो गया? आंसर नहीं तो क्यों आना है यहाँ पर? आंसर नहीं देंगे, लेकिन आंसर आपको मिलेगा. दिस आई गिव गारंटी. आपको कोई प्रश्न के लिए उत्तर नहीं देंगे, लेकिन आपको उत्तर मिलेगा. दिस इज इंटरेस्टिंग. इन ओल्ड गुरु शिष्य परंपरा, इन अवर शास्त्रास, एक बहुत सुंदर पद्य है. वृद्धा शिष्य गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्ते छिन्न संशयः. There is a beautiful shloka. He describes the beauty of Dakshinamurti Stotram. The students are sitting in front of him, and all are old people. And the teacher who is sitting on the dais is young. He is not speaking. He is sitting Mauna Mudra, no speech. And all questions are answered. And the answers are speechless. You have to find the answers. And Bhagavad Gita creates a way for you to find the answers within yourself. I promise you, as a student, as an young boy, as an administrator, as a teacher, as a family household man, as a father, as a parent, I have found all answers in one book, Bhagavad Gita. It's my experience. Will you be ready for that? Good choice you have made. This was your choice. There were thousands of students. Only you chose this, because you are chosen by Lord Krishna. Let us begin 13th chapter with some interesting questions. And let it be a conversation. एक थोड़ा संवाद के रूप में चले, कि इसमें the title of this 13th chapter is क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग. क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग. I alert? Everyone is alert? आपके पास भगवद गीता है? वो बहुत छोटा भगवद गीता में मिलता है, ये इससे छोटा भी मिलता है, क्योंकि ये बहुत छोटा है. Yeah, they have a big one to read, right? How many of you can recite Bhagavad Gita? Started reciting Bhagavad Gita. उच्चारण करने के लिए जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? अच्छा, 4 लोग. तो नहीं जानते हैं, 1-2 श्लोक करना होगा. करेंगे? ठीक है. Now we'll start. आपके पुस्तक ओपन करिए, 1-2 श्लोक करेंगे. 13th चैप्टर भगवद गीता का 2-4 श्लोक हम सब मिलकर चैंट करेंगे, और उसका आप नोट कर लीजिए, और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है? संपूर्ण भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? हाउ मेनी श्लोकास वी हैव? 701. 701. Okay, and the missing shloka, the shloka which is in doubt or in discussion, debate, is the first shloka of 13th chapter of Bhagavad Gita. Whether it is 700 or 701, this first shloka of 13th chapter is in question. Okay, just to know. But let me start with this. Here, the shloka, whether it is available here. गीता प्रश्न नहीं है वो दूसरे में. हाँ, two readings. Now in this Bhagavad Gita shlok, this one, 34 shlokas. We find 34 shlokas in this chapter.
35 or 34, 33 people are very. But anyway, I will select 4 or 5 shlokas for you which will be useful in our reading. Okay? We will spend only on that. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Idam shariram kaunteya kshetramityabhidhiyate etadyo vetti tam prahuhu kshetrajna iti tadvidaha kshetrajnanchapi mam vidhi सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम महाभूतान्यहंकारः श्लोक 5 महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् श्लोक नंबर 9 असक्तिः अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यंच समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। नंबर 20 कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरेव च हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सर्वदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। नंबर 28 समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्ति आत्मनात्मानं ततो यान्ति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा प्रकाशयत्येकः। नंबर 33 यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्ज्ञान्ति ते परम। वेरी गुड। Let us begin with a question. After her graduation, my daughter, one day, of your same age, one day came to me and asked, my teacher told that I am different from body. Is it so? How many of you have this question? Body and me both are different? और one and the same. मैं शरीर जो है, मैं शरीर ही में हूं। देखो, एक क्वेश्चन पूछता हूं। हमें ऐसा लगता है, मैं कितने लोग, आप युवा लोग हैं तो ज़्यादा ही होता है, सो मिरर के सामने कितना समय यापित करते हैं? जस्ट यू डिड नॉट आंसर मी एंड यू कैन जस्ट थिंक इन योर माइंड, मिरर के सामने कितना टाइम स्पेंड होता है? क्योंकि मतलब जो मेरा अपीयरेंस ठीक होना चाहिए, फ्रेंड्स के सामने, टीचर के सामने, तो अपीयरेंस के लिए बहुत ही हम कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं मैं एक बॉडी हूं और इस मुझसे अच्छा दूसरों के आंख में जो मेरा प्रतिबिंब है वो अच्छा होना चाहिए। क्या हमने कभी ट्राई किया मुझे अच्छा करना है? क्या हमारा सोच में हमेशा ये रहता है कि टीचर के परसेप्शन में मुझे अच्छा रहना है? माँ के दृष्टि में या तो पिता की दृष्टि में अच्छा करना है, तो माँ और पिता के बीच में अंतर है। माँ के ठीक है, माँ को चलता है, लेकिन पिताजी को सामने बहुत ठीक ठाक रहना है ना, वो लगता है, क्योंकि पिताजी के सामने अच्छा दिखना है और माता के सामने चलता है, इसलिए हमेशा हम अपीयरेंस के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि वी हैव बिलीव्ड दैट ये मैं हूं। अच्छा होने आने शरीर का भी है और लोग मुझे अच्छा सोचना चाहिए। पिताजी मुझे बहुत स्टूडेंट हैं, पिताजी जब आएंगे तो ठीक ठाक से मोबाइल वगैरह छोड़ के ऐसा बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको दिखना चाहिए ये बहुत पढ़ रहा है, ये बहुत पढ़ रही है, बहुत स्टूडियस है, ठीक है। और क्योंकि हमेशा हम दूसरों के सामने हमको अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि there is something which we want to hide. There is something which we think that I am that. आप अपने अपने लेवल में इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्वेश्चन है, बॉडी या माइंड। माइंड में जो है, माइंड ही मैं हूँ, मुझे छुपाना है तो माइंड छुपाना है, कि मेरा थॉट्स नहीं है, वो मैं ही हूँ, ऐसा भाव होता है। और मुझे लगता है कि मुझे सबके सामने जो है वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ सबके सामने आना ही नहीं चाहिए, हम डिस्टिंक्ट करना चाहते हैं। तो ये जो भाव है कहाँ से आ रहा है? बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ बिलीव दैट मैं और मेरे बॉडी, मैं और मेरे थॉट्स, मैं और मेरे जो सिस्टम है उसको मैं अलग नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं और मेरे एक्शन को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे जितने भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये सारा इसके साथ है। जहां भी मैं ओपन रहता हूं वहां हमारे बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे।
इंटरेस्टिंग बात क्या है, दूसरों से छुपाना, दूसरों से अलग करना ठीक है, लेकिन मैं खुद से अलग हो जाता हूं। मैं खुद से मेरे थॉट्स को, मेरे मन को, मेरे बॉडी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं। हाउ मेनी ऑफ अस थिंक दैट मैं ठीक नहीं हूं? हाउ मेनी ऑफ अस थिंक दैट मेरा विचार ठीक नहीं है? हाउ मेनी ऑफ अस थिंक दैट ये ठीक नहीं है, ये ठीक है? और मैं सोचता हूं वो ठीक है, मैं ठीक नहीं हूं, या मैं ठीक हूं, वो ठीक नहीं है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। क्योंकि मैं सोचता हूं मैं बॉडी, मेरा मन, मेरा सोच, ये सारा मैं ही हूं, इसलिए मैं ठीक हूं। इसके बारे में थोड़ा ट्रीटमेंट करना चाहिए। बेसिकली इट इज नॉट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड इट, बट वी डोंट फील इट। भगवत गीता में एक क्वेश्चन को भगवान ने लिया है, ये बेसिक प्रॉब्लम है। ये बेसिक प्रॉब्लम जो है ह्यूमन प्रॉब्लम है, किसी प्राणी को ये नहीं लगता है। आपको पता है, कुछ प्राणियां जब उनको लगता है ये शरीर ठीक नहीं है, वो अपने आप को छोड़ देते हैं। बहुत मुश्किल है, ये नेचर है। नेचर सो नेचुरली रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन नेचर से बाहर जो दुनिया में हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हमारा रिलेशन विद द नेचर। ये भी इन क्राइसिस में, अभी जितना भी दुनिया में क्राइसिस है, क्राइसिस का कारण है एनवायरमेंट क्राइसिस के बारे में कितना एनवायरमेंट स्टडी हो रहा है अभी, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट क्राइसिस, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसे कितने कहानियां सुनते हैं। अभी हिमालय में स्टोरी देखा आपने, कितने दिन चला वो स्टोरी? 17 दिन, 20 दिन स्टोरी चला, रोज सुबह से शाम तक वही चलता रहा। हाँ, क्योंकि हमने प्रकृति के अंदर एक छेद कर दिया। देख लीजिए, मेरे बॉडी में यहां से यहां तक किसी ने छेद किया तो क्या होगा? एक डाल के यहां छेद कर दिया तो क्या होगा? प्रकृति को लगेगा। लेकिन प्रकृति के बारे में हम नहीं जानते हैं, प्रकृति क्या चीज है। कोई दुनिया का कोई फिलॉसफी, कोई 5,000 साल पहले प्रकृति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा है। 5,000 साल पहले, अभी जो भारत में अभी प्रकृति के बारे में जो बात हो रही है, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में 15 साल से 20 साल से एनवायरमेंटल साइंस के बारे में बात हो रही है। एनवायरमेंटल साइंस के बारे में बात भगवत गीता में 5,000 साल पहले की गई है। क्या हमने इसको देखा है? प्रकृति के साथ क्या करना है, कैसे व्यवहार करना है, इसके बारे में सोचना है। सी, वी डोंट टेक several questions and several answers। आपको वेरी इंटरेस्टिंग लगता है कैसे हमारे शास्त्र काम करते हैं। यहां 2 क्वेश्चन मैंने लिया, एक इंडिविजुअल लेवल का क्वेश्चन। मेरे इंडिविजुअल लेवल में इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट का मूल है मेरे शरीर के बारे में मेरा रिलेशन क्या है, और मेरे मन के बारे में मेरा रिलेशन क्या है, और मेरे थॉट्स के साथ मेरा रिलेशन क्या है, और प्रकृति के साथ, एक्सटर्नल है क्वेश्चन, मतलब पूरा नेचर के साथ मेरा रिलेशन क्या है। मैं प्रकृति के साथ कैसा संबंध रख रहा हूँ, कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। लेकिन इन दोनों अलग अलग क्वेश्चन को भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह में लेके आया, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत का जो विचार है, फिलॉसफी है, वो इस ब्रह्मांड और पिंडांड में जो चलता है वो एक ही है। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम योर बॉडी एंड द सेम प्रॉब्लम पर्सिस्ट इन द नेचर, यदि नेचर में से प्रॉब्लम है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाला है। मतलब पूरे दुनिया को एक शरीर के रूप में मानिए और अपने शरीर को एक शरीर के रूप में मानिए, तो दोनों का रिसेम्बलेंस है, एक बड़ा है, छोटा है, बस। तो यहां भी जो होगा ये पूरी दुनिया में होगा। यहां जो ट्रीट करेंगे पूरी दुनिया के साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। तो पहला करेक्शन मेथड कहां करना है? यहां करना है। एक स्टोरी है, एक दुनिया का एक ग्लोबल का एक नक्शा था, उसको छोटा बालक ने उसको फाड़ दिया, पीस हो गया। तो बाद में वो सुबह
स्कूल जाने वाला बच्चा को लेके जाना था उसको, ग्लोबल का जो नक्शा है उसको स्कूल में प्रेजेंट करना है, छोटा बालक ने उसको फाड़ दिया, भाई ने फाड़ दिया, वो रोते आ गया। तो पिताजी के पास आ गया, तो पिताजी ने कहा एक काम करो, छोड़ दो उसको जोड़ नहीं सकते, इतना जोड़ना आसान नहीं है। उसके पीछे एक मानव शरीर का चित्र है, उसको ठीक कर दो। तो उन्होंने क्या किया, हाथ पांव एक जो है उसको जोड़ दिया, तो उसको जोड़ के थोड़ा टेप लगाया, तो उसको उल्टा किया तो ग्लोब भी ठीक हो गया था। कि इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब तक हमें यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ ठीक नहीं करेंगे, तब दुनिया को समझेंगे नहीं। हमेशा हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, हाँ यहाँ वार्म हो रहा है, उसको वार्म कोई बात नहीं करता है, वार्म यहाँ हो रहा है। कैन यू थिंक, यहाँ वार्म है इसलिए ग्लोबल वार्म हो रहा है, यहाँ जब कूल हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग बंद हो जाएगी। कितने लोग इसको मानते हैं? How many of you can see that? यहाँ कूल हो जाएगा तो वहां भी कूल होगा। दुनिया में इतना गर्मी बढ़ी है क्योंकि यहाँ गर्मी बढ़ी है, क्योंकि यहाँ इसलिए गर्मी बढ़ी है। मशीन में आप बहुत लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पर पढ़ते हैं ना, मशीन में क्यों गर्मी बढ़ती है? टेंशन, मतलब दोनों के बीच में संघर्ष। जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, यदि कूल होगा तब कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो कूल होगा। यहाँ जितने भी चलता है ये सारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता रहेगा, मशीन जितना फास्ट चलेगा उतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, उतना ही गर्मी बढ़ेगी। बेसिकली देयर इज नो अलाइनमेंट। मेरे बॉडी के साथ, मेरा मन के साथ, मेरा मन विचार के साथ और मैं जो हूँ उसके साथ अलाइनमेंट नहीं है। इस अलाइनमेंट रहेगा, मेरी घड़ी जो है डिजिटल होगा पता नहीं मुझे, इस पे गर्मी नहीं बढ़ेगी। क्यों? सिंपल है, बहुत कूल है। क्यों? बिकॉज यहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसके अंदर अलाइनमेंट है। इसमें जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज अलाइंड। उसका एक उसके समन्वय के साथ काम कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जहां कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहां संघर्ष नहीं है, वहां गर्मी नहीं है। मूल कारण यहां है। दुनिया में इतने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पता है क्यों? यूक्रेन, रशिया और पैलेस्टाइन कहाँ है? हाँ? इसराइल, हमास, उसके पीछे कितने लोग? सारे कॉन्फ्लिक्ट के पीछे ईगोस है, अहंकार है, वो मैं हूं। क्योंकि आपका मूल प्रश्न कहाँ है? प्रकृति और ह्यूमन के साथ रिलेशन के अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। हमारे घर में गर्मी होती है, गरम गरम होते हैं लोग, होते हैं ना, चर्चाएं होती है, डिस्कशन नहीं होता है। क्या होता है? डिस्कशन नहीं होता, डिबेट भी नहीं होता है। और क्या होता है? संवाद में विवाद होता है। डिबेट भी नहीं, डिस्कशन भी नहीं है। डिस्कशन तो है ही नहीं, पहले डिबेट तो है ही नहीं, उसके बाद क्या होता है? मारामारी, हॉट स्पीच। तो हम जानते हैं दूसरों को ईगो कैसे हर्ट करना, कैसे डाउन करना। किसी को डाउन करने में मजा आता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं ही ठीक हूं। ये कॉन्फ्लिक्ट के मूल कारण हम नहीं जानते, क्योंकि हम रिलेशन नहीं जानते। फ्रेंड्स, बेसिक प्रॉब्लम इज माय परसेप्शन टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द लाइफ, अदर्स। एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से चाहते हैं। कितने लोग हम घर में चप्पल ठीक से रखते हैं? जस्ट क्वेश्चन आप माइंड में, हाँ ठीक है, आप उठाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में सोचिए चप्पल कैसे रखते हैं। ये है। और कितने लोग पेन और पेपर घर में अपने टेबल पर ठीक से रखते हैं? या कैसे रखते हैं? ठीक से रखते हैं, मत पूछो, कैसे रखते हैं? ठीक
रखते हैं इसके पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कैसे रखते हैं, और उसको रखने में मेरा रिलेशन उनके साथ डिफाइन होता है। मतलब मैं उसको कैसे देख रहा हूँ। यदि मैं उसके प्रति थोड़ा सा मेरा रेस्पेक्ट है, चप्पल के पास के बारे में भी रेस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि चप्पल सर्व्स भी, मुझे सर्विंग कर रहा है। ऐसा नहीं कि उनके रेस्पेक्ट नहीं है, उसको भी रेस्पेक्ट है। क्योंकि मैं ये नहीं सोचता हूँ क्योंकि वो नॉन ह्यूमन बीइंग है उसके बारे में क्या सोचना है, क्योंकि मेरी दृष्टि जड़ हो गई है। मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि जड़ हो गई है, मैं पहचान नहीं रहा हूँ ये वस्तु। देखो इस वस्तु जो है ना, माइक मुझे सर्व कर रहा है, इट इज गिविंग सर्विस टू मी। मैं इसको थ्रो करूंगा, सुबह चाहिए तो मिलेगा क्या मुझे? इट गेट्स हर्ट, इट गेट्स हर्ट। मुझे पता नहीं, मुझे मैं इसको एक जड़ के रूप में देख रहा हूँ, मैं एक इसको वस्तु के रूप में देख रहा हूँ। इसका एक्सटेंशन पता है आपको? मैं मेरे बीवी को एक वस्तु के रूप में देखता हूँ, मेरे फ्रेंड को एक वस्तु के रूप में देखता हूँ। वो मैं जैसा चाहता हूँ वैसे मेरे साथ रहे, ये मैं दूसरों को चाहता हूँ। मेरे घर में मेरे माँ को सब लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो भी एक चेतना है? कोई किसी को फीलिंग है? मेरी माँ घर में इतने लोगों को सर्व करती है, उनका भी एक जीव है, उनका भी रेस्पेक्ट है। किसी ने सोचा? नहीं सोचा होगा, इसलिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। घर में घर में छोटा जो कुत्ता है उसके लिए भी रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो क्या दिखाएगा अपना? लेकिन हम वस्तु को यूज करना जितना जानते हैं, अब्यूज नहीं करना उतना ही नहीं जानते हैं। यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं। घर में हमारे रिलेशंस को हम अब्यूज करते हैं क्योंकि उनके प्रति हमारी धारणा नहीं। मैं चप्पल के साथ शुरू किया, पेन के साथ शुरू किया। हमारे रिलेशन में माँ है, पापा है, घर में फ्रेंड्स है, सोदर सोदरियाँ हैं, और हमारे जितनी भी रिलेशन है उसको क्या हम यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, ये मेरी दृष्टि पर निर्भर है। मैं इस वस्तु को कैसे देखता हूँ। आज दुनिया में हमारे प्रकृति के सामने शरीर के कितने लोग हम जानते हैं हमारे शरीर को कितना यूज करते हैं, कितना अब्यूज करते हैं। जितने लोगों को, युवा लोगों के चश्मा आया है, उनको सब सोचना है क्या हमने हमारे आईज को यूज किया या अब्यूज किया। नहीं, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब जस्ट इट्स अ क्वेश्चन विद इन यू। क्या मैंने यूज किया या क्या अब्यूज किया? क्या मेरे शरीर में जो है कितना व्याधियाँ आई हैं, तो मुझे किसी को प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है, किसी को प्रॉब्लम कंधे में आ जाता है। तो क्वेश्चन है क्या मैंने उसको यूज किया, अब्यूज किया? क्योंकि मेरे धारणा उनके प्रति क्या है, इसके आधार पर वो मुझे सर्व करते हैं। प्रकृति के बारे में एक हमने कंज्यूमरिस्ट अप्रोच है, क्योंकि ये मेरे लिए बना है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। आपका व्हीकल यदि आपने सर्विस ठीक से नहीं किया तो काम के नहीं आएगा। हर 6 महीने में एक बार सर्विस करना पड़ेगा उसका, क्योंकि यदि आप उनके प्रति, प्रकृति का एक स्वरूप है, उनके प्रति आप अच्छी धारणा रखते हैं, आपके लिए बहुत काम आ जाएगा। यदि नहीं करेंगे नहीं आएगा। आज दुनिया में एक कंज्यूमरिस्ट अप्रोच फॉर द नेचर, मतलब मैं ये सोचता हूँ नेचर मेरे लिए है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। पूरा विश्व में केवल विश्व नहीं है, दुनिया में किसी को मैं परचेस कर सकता हूँ। कितना भाव है, किसी को मैं प्राइस देकर परचेस कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ये भाव से जब दुनिया चलेगी तब सारा खत्म हो जाएगा। मैं गया था पाकिस्तान का बॉर्डर में गया था, अभी पाकिस्तान बॉर्डर में एक भारत का एक बॉर्डर है, उस तरफ पाकिस्तान है। हमारे यहाँ लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वहाँ लिखा था। उसके मेरा पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम पाकिस्तानी हैं, सारा जहां हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। हम पाकिस्तानी तो हमारा गर्व का विषय है, हम हिंदुस्तानी तो हमारा गर्व का विषय है।
मैं यूएस सिटीजन हूँ, हमारा गर्व का विषय, सारा जहां हमारा है प्रॉब्लम है। ये सारा जहां हमारा है, इससे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम इसलिए हिंदुस्तान हमारा में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, सारा जहां हमारा है। दिस इज द परसेप्शन प्रॉब्लम। मैं प्रकृति के सामने मैं यहां क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, मेरे शरीर के प्रति मेरा धारणा क्या है, मेरे परिवार के प्रति मेरा धारणा क्या है, मेरे देश के प्रति मेरा धारणा क्या है, मेरे प्रकृति के प्रति मेरा धारणा क्या है। इस क्वेश्चन के लिए जब हम उत्तर देंगे तब सारा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होता रहेगा। क्षेत्रज्ञ योग में भगवान श्री कृष्ण ने इस क्वेश्चन को लिया है। क्षेत्रज्ञ योग में भगवान श्री कृष्ण ने क्वेश्चन लिया है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र ने फील्ड क्या है, और फील्ड के नॉलेज क्या होता है। आपको फील्ड जानते हैं, देखो लोग बोलते हैं ना, आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो फील्ड जानना जरूरी है ना। क्रिकेट खेलना चाहते हो, फील्ड जानना बहुत जरूरी है। फील्ड के नॉलेज के बिना क्रिकेट खेल नहीं सकते। हम क्रिकेट खेलने आए हैं, लाइफ इज ए क्रिकेट, क्षेत्र जानना जरूरी है। हम फील्ड क्या होता है, फील्ड को जानना कैसे, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फॉर द सेकेंड सेशन। I'll split this session in two ways. One, I'll take 2-3 messages of this particular chapter. What sort of answer, instead of answer, what sort of understanding is given by Lord Shri Krishna? It is not answer, it is an understanding. What we need to do is, when our perception changes, our behavior changes. You know, in India, there is a feeling, if book is kept here, if by chance, if I touch this book with my leg, what do? नमस्कार करते हैं। Why? This is not just an object. For me, this is not just an object. I have developed a great respect for this. This is abode of Saraswati for me. It is abode of Jnana for me. And this is giving life for me. This is giving living for me. I have great respect for this. I don't want to insult this. You know one thing, the entire universe is governed by one principle called Prakriti. Each one of these objects is nothing but Prakriti. It is a donation given by Prakriti. It is not just creation. It is creation of Supreme Being, and everywhere we have a Chetana. You know, when a friend comes to my house, immediately I'll go and hug, get him in, welcome. And a child comes, what do? I go and touch the chin, ऐसा करके उनके बाल वगैरह करके उनको हाथ में उठाते हैं। और कोई बड़े आएंगे तो जाके पाद स्पर्श करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, नमस्कार करेंगे, आप आए हैं, आइए। और कोई मतलब हम जो जैसे भी लोगों को देखते हैं, अलग अलग रिलेशन, वो हमारा परसेप्शन है। मान के चलिए वो परसेप्शन चला गया, मेरे अंडरस्टैंडिंग में भाव ही नहीं गए, तो क्या मेरा बिहेव होगा इस तरह का? तो मैं जैसे जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन बढ़ता है, ये इसको बोलते हैं ब्रह्म दृष्टि।
जैसे जैसे मेरे ब्रह्म दृष्टि बढ़ती है वैसे वैसे मेरा रिफाइनमेंट होता है, मेरे व्यवहार में रिफाइनमेंट होता है, मैं रिफाइन हो जाता हूँ, मैं संस्कृत हो जाता हूँ। मैं जैसे संस्कार बढ़ेगी तो मेरे लिए अच्छा है, दूसरों के लिए क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम रिफाइंड, आई एम गोइंग टू गेट माई सेल्फ। मुझे मेरे लिए मैं कौन हूं पता नहीं है, क्योंकि मैं रिफाइंड रूप से मेरा अवेलेबल नहीं हो रहा। बेसिकली कहां से शुरू हो रहा है? देखिए, पूरे शरीर को हम अब्यूज करते हैं। अब्यूज से क्या करते हैं? ये ठीक नहीं है। कितने लोग अपने आप को लव करते हैं? आई लव माई सेल्फ। Everyone, but everyone does not love. You don't have self respect नहीं है, self love नहीं है। मैं बहुत, कितने लोगों को लगता है मैं बहुत सुंदर हूं? गुड होना चाहिए, मैं बहुत सुंदर हूं। क्यों सुंदरता? क्योंकि ये शरीर जो है ये प्रकृति का देन है, नेचर, ये नेचर है। नेचर में एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। नेचर में कोई ऐसा चीज नहीं है जो ब्यूटीफुल नहीं है। आप यदि अच्छे उपवन में जाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, गार्डन में जाएंगे तो हर एक वहाँ जितने भी छोटे छोटे पौधे हैं, हर एक पौधे में अलग अलग कलर है, अलग अलग पुष्प है, साइज अलग है, उसका कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 8 है, उसमें पटलियाँ अलग अलग होते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। नजर है, नजरिया में ब्यूटी है, वस्तु में जो है वो चेतना है। जिस वस्तु में हम चेतना देख सकते हैं उस वस्तु में ब्यूटी देख सकते हैं। क्योंकि हम जड़ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे दृष्टि जड़ बन गई है। यदि मेरी दृष्टि जड़ है तो पूरे दुनिया में जड़ देखूंगा, चेतन में भी जड़ देखूंगा, बहुत अच्छा चेतन में भी जड़ देखूंगा तो मुझे जड़त्व ही प्राप्त होता है। दिस इज व्हाट भगवद गीता टेल्स अस। बेसिकली क्षेत्र क्या होता है, फील्ड क्या होता है? हम फील्ड क्वेश्चन से शुरू किया। जैसे आप देख लीजिए, एक सिंपल क्वेश्चन, हम स्टूडेंट लाइफ से आते हैं ना, हम स्टूडेंट लाइफ। मुझे भी लगता था जब मैं स्टूडेंट था, एग्जाम हॉल जाने के लिए बहुत डर लगता था। एग्जाम हॉल जाने में, क्योंकि एग्जाम हॉल क्या लगता है मुझे, एग्जाम हॉल मुझे लगता था कि ये मुझे डाउन कर रहा है, मेरी शक्ति को ह्रास कर रहा है, और मुझे लगता है कि एनर्जी ड्रेन हो रहा है, और मुझे अपमानित होने का स्टेज है। क्योंकि मैं एग्ज़ाम हॉल को ऐसा देखता था, उसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके लिए उत्तर नहीं दे पाऊंगा, नहीं देने पर मुझे मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं देंगे तो सब इंसल्ट करेंगे, सब इंसल्ट करेंगे तो मैं नहीं रहूँगा। तो एग्ज़ाम हॉल से मुझे नफरत होना शुरू हो गया, मेरा ये अनुभव बता रहा हूँ। और उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, तो एग्ज़ाम के बारे में, क्या एग्ज़ाम क्या चीज़ होता है, ऐसा उड़ाव बातें करते हैं ना लोग। एग्ज़ाम क्या चीज़, एग्जाम आई डोंट केयर एग्जामिनेशन। उसको दिखाने के लिए क्या करना है, मैथमेटिक्स के जिनमें मुझे कुछ नॉवेल पढ़ना है, नॉवेल पढ़ते रहना है। क्यों? लोग पूछेंगे तो मुझे कोई डर नहीं है एग्ज़ाम से, मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है, कितना मार्क्स से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसा एग्ज़ाम के बारे में जो करना है वो नहीं है कि आपके अंदर जो डर है उसके डर को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका है। क्योंकि एक कहानी है जो बहुत क्या था वो एक कहानी है, एक छोटा सा वुल्फ जो है वो उसको खाने गया, द्राक्षा को, तो ऊपर था, उसको नहीं आ रहा था। हाँ, फॉक्स। तो फॉक्स ने क्या कहा, ये बहुत ठीक है, कड़वा है, इसलिए उसको लेना नहीं है, कट्टर है। क्योंकि हमें लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा इसलिए उसको ठीक नहीं है। तो ये जो भाव है, हम हर एक वस्तु के बारे में ऐसा करते रहेंगे। लोगों को लगता है कि मेरे ताकत से नीचे है इसलिए मुझे नहीं करूँगा इसको, मैं बहुत ताकतवर हूँ।
मुझे बहुत बड़ा बनना है, ये एग्जाम क्या चीज़ है। ऐसे जो भाव है ना, इससे बाहर आना पड़ेगा, हमें परसेप्शन ठीक करना पड़ेगा। परसेप्शन ठीक करने के लिए मुझे बहुत काम मेरे ऊपर करना होगा, ना कि बाहर से। तो इसलिए फील्ड को जाने बिना, क्या फील्ड है और फील्ड को बिना जाने हम प्ले नहीं कर सकते। कितने लोग यहाँ अपने कैरियर से प्ले करना चाहते हैं, सीरियस लेना चाहते हैं कि मैं बोलूँगा नहीं सीरियस मत लो, इसको प्ले करो। सीरियस लेना प्ले करने में बहुत अंतर है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा युद्ध रंग में भी प्ले किया है। उनका युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण प्ले कर रहा था, एंजॉय कर रहा था उसको। समझ सकते हैं? एग्जाम को एंजॉय कर सकोगे? स्टडी को एंजॉय कर सकोगे? जब तुम सबको एंजॉय कर सकोगे तब जो है आप वास्तविक रूप से आप सफल बनेंगे। धोनी नेवर प्लेड प्लेड क्रिकेट एज ए सीरियस बिजनेस। उन्होंने उसको एंजॉय किया, इसलिए खुद के लिए प्लेफुल बना, दूसरों के लिए प्लेफुल बना। वो जीत भी गया। जीतने के लिए आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। इन्वॉल्व होने के लिए आपको प्यार करना जरूरी है। प्यार करने के लिए उसमें ब्यूटी देखना जरूरी है, उसको एंजॉय करना जरूरी है। जब तक ये प्रोसेस हम अपने आप को नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट करना है। तो फील्ड को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अपने आप को जानो पहले। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रवित्त विदिते, योर बॉडी इटसेल्फ इज फर्स्ट फील्ड। योगा करो, क्यों करना है? लोग बोलते हैं योगा करो, क्यों करना है? लेकिन पहले यदि हम खींचेंगे, बॉडी मेरा पहला फील्ड है प्ले करने का। प्ले बाहर नहीं करना है, फील्ड यहाँ पहले यहाँ करना है। यदि यहाँ करना है तो इसको ठीक करना है। बॉडी क्या होता है, शरीर क्या होता है? शरीर में हम सोचते हैं शरीर में बॉडी है, जो हाथ पाँव ये है, ये बॉडी है। नहीं, बॉडी का मतलब है, केयरफुली यू रीड द भगवद गीता श्लोक का। मैं आपको पढ़ता हूँ, आपके सामने वो 2-4 श्लोक पढ़ता हूँ। देखिए, शरीर क्या होता है? शरीर जो है, पहला शरीर जो है हमारा, जो शरीर हम मानते हैं, उसमें 2 भाग हैं। यहाँ जितने भी हमारा शरीर है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं। एक है मड, पृथ्वी। पृथ्वी क्या होता है? पृथ्वी यानी जो हम फूड में ये होता है ना, जो स्टफ होता है, फूड में जो भी स्टफ है वो सारा पृथ्वी है। हमारा शरीर जो बनता है फूड से बनता है। फूड में जो आटा है, चावल है, जो स्टफ है, जो हम कार्बोहाइड्रेट रूप में जानते हैं, कार्बोहाइड्रेटेड इज पृथ्वी। कार्बोहाइड्रेट पार्ट ऑफ द बॉडी इज पृथ्वी, जो स्टफ होता है। उसके साथ बॉडी में और 4 एलिमेंट हैं। नंबर 1 पृथ्वी, दूसरा वाटर। बॉडी में वाटर जैसा दिखता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसको जल तत्व मानते हैं। जल है क्योंकि वहाँ फ्लो होता है, जैसे ब्लड फ्लो होता है इसलिए ब्लड फ्लो होता है, वहाँ वाटर है। तीसरा एलिमेंट है वायु। वायु यानी शरीर में वायु, शरीर में वायु नहीं है तो प्रवाह नहीं होता है, तो कुछ भी आगे पीछे नहीं जाता है। सारा शरीर में वायु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए शरीर में हर क्षण में हमारे शरीर में अंदर क्या जाता है, श्वासोच्छ्वास आता है। वायु जा रहा है, आ रहा है, पूरे शरीर में पंप कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है। ये एनर्जी का मूल स्रोत है। चौथा है अग्नि। देखिए, हमारा शरीर में जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हॉट रहेगा, क्योंकि अग्नि है, अग्नि काम कर रहा है, फायर है। 4 एलिमेंट हम देख सकते हैं। एक स्टफ है, दूसरा जल है, तीसरा वायु है और चौथा फायर है।
ये सारा एलिमेंट है। उसके साथ स्पेस नहीं है, उसको स्पेस के नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो जॉइनिंग स्पेस है। जो अनजॉइनिंग स्पेस जो होता है, ये चार एलिमेंट्स को बांधने के लिए जो एलिमेंट होता है वो आकाश है। क्योंकि वहां वो आकाश नहीं होता है तो ये सारे एलिमेंट बांध के नहीं रहते। इसको बांधने वाला एक चीज है, आकाश है। इसको बोलते हैं महाभूत, इसको भूत बोलते हैं। भूत यानी भूत नहीं है, भूत यानी ये चार एलिमेंट शरीर में है, ये शरीर में भी है, बाहर में भी है। देखिए, दिस इज पृथ्वी, इसके अंदर वायु है, जल है, जल के अंदर वायु है ना, ऑक्सीजन है, H2O है ना, और उसके अंदर अग्नि भी है। यहाँ अग्नि भी है, सूक्ष्म दृष्टि से अग्नि है, और स्पेस भी है, आकाश भी है। सारे मिलकर हमेशा जितनी जो भी वस्तु है इसमें सारे हमेशा मिले हुए रहते हैं। इसको पंच महाभूत बोलते हैं इसको। इसलिए अल्टीमेटली दिस बॉडी जो है उसको पांचभौतिक बोलते हैं। शरीर जो है पांचभौतिक, महाभूतानि। देन यू हैव अहंकार। अहंकार इज नॉट ईगो। जो आपको फीलिंग होता है मैं हूं, माई सेल्फ, ये जो फीलिंग हो रहा है, दिस फीलिंग इटसेल्फ अहंकार। जिसको ये अहंकार नहीं है वो मरा हुआ आदमी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोमा में चले जाते हैं ना लोग, कोमा में चले जाते हैं, इसका मतलब ही इज नॉट इन द सेंस ऑफ माई सेल्फ, मैं अंडरस्टैंडिंग चला गया उसका, इसमें कोमा चला गया, वो केवल जड़ है, महाभूत बच गया, अहंकार चला गया। जब तक ये अहंकार है तब तक रिलेशन है दुनिया का। जब तक मेरा अवेयरनेस खत्म हो गया तब तक मैं दुनिया से व्यवहार नहीं कर सकता हूँ। अहंकार चला गया तो व्यवहार खत्म हो गया। इसलिए अहंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुद्धि, बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। अब आपने आज जो चॉइस किया, यहाँ आना है नहीं आना है, इसके लिए आपका इंटेलेक्ट यूज करते हैं। जाने से क्या फायदा है, न जाने से क्या होने वाला है, उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। एक कैलकुलेटिव माइंड जो है ना, एक कैलकुलेटिव माइंड, दिस माइंड इज बुद्धि, इंटेलेक्ट, कैलकुलेटिव माइंड। देन अव्यक्त। अव्यक्त इज सच दैट उसको आप टच नहीं करते, फील नहीं कर सकते कि वो है। जैसे आपको उदाहरण बताता हूं मैं, हमारे माइंड में काफी कुछ स्टोरेज है, बहुत बड़ा स्टोरेज है। वो जब तक वो स्टोरेज नहीं आता है, काम के लिए नहीं होता है, लेकिन पूरे मतलब हमारे बचपन से आज तक जितने भी हमने सीखा है, जितने भी हमने देखा, वो सारा स्टोरेज में है, अव्यक्त है। जब हमें चाहिए बाहर आएगा, जब नहीं चाहिए वो अंदर रहेगा। वो रात को कोई सोया हुआ आदमी को बताते हैं, ये बहुत मैथमेटिक्स बहुत अच्छा जानता है, सोया हुआ आदमी कहाँ जाता है, शी इज वेरी गुड स्विमर, रात को सोई है, वेरी गुड स्विमर बोलते हैं। स्विमर क्या है, उठने के बाद जब वो जल में, मतलब जब वो पानी में जाएगी तो डूबेगी नहीं, वो स्विम कर सकती है इतना। वो उनका जो स्किल है वो सोने के समय में वो स्किल जो अव्यक्त बन जाएगा, जब वो पानी में डूब जाएगी तब वो व्यक्त हो जाएगा, इसलिए उसको अव्यक्त बोलते हैं। इनर जितने भी स्टोरेज है हमारा स्किल का, नॉलेज का, अंडरस्टैंडिंग का, वो सारा अव्यक्त है। उसके बाद इंद्रियाणी, हमारा इंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन सेंसेस। 5 हमारे इंद्रिय जो है इंप्रेशन सेंसेस है, वो इंप्रेशन लेगा। आइज, बोलना नहीं पड़ेगा ना, इंप्रेशन है, इनपुट सेंसेस है। 5 जो है आउटपुट सेंसेस है, एक्सप्रेशन करता है ना, बोलते हैं, वाग इंद्रिय है। 5 जो है इनर है, 5 एक्सप्रेशन करते हैं, जैसे हमारा हाथ पाँव वगैरह है, ये सारा 5 है। उसके साथ 1 मोर एक्स्ट्रा है, उसको भी इंद्रिय मानते हैं। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? मन है। मन जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। वैसे तो हाथ पांव भी हाथ में नहीं है, लेकिन मन तो, क्योंकि मन तो हाथ में नहीं है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है आपको? मन को छोड़कर बाकी सबको हमारे हाथ में लेने की कोशिश करते रहते हैं। पूरी दुनिया मेरे हाथ में रहे, कौन नहीं चाहता?
मैं जो चाहता हूँ वो बने, मैं जो सोचता हूँ वो हो जाए। इस तरह के पूरी प्रकृति में, मैं प्रकृति के ऊपर वश प्राप्त करने के लिए हम हमेशा तड़पते रहते हैं। ये जो भाव है, प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए जो भाव है ना, इस भाव क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, ऐसा एक अहंकार काम कर रहा है। उसके कारण से मैं दुनिया को मेरे कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, इसलिए सारा मेरा प्रयास करता रहता हूँ। सारा टीचर्स ये सोचते हैं, सारे बच्चे मेरे क्लास में मैं जैसे बोलूँगा वैसे रहना चाहिए, वो कंट्रोल रहना चाहिए। घर में माँ बाप सोचते हैं जब कोई आएंगे घर में, ये बहुत साफ सुथरा दिखते रहे और इनको बहुत शरीफ दिखाना चाहते हैं, तो सब शराफी से सब कंट्रोल करना चाहते हैं। और हर एक लेवल में हर एक व्यक्ति कंट्रोल, अपने लेवल में कंट्रोल करना चाहता है। ये प्रकृति के ऊपर जो कंट्रोल करने का स्वभाव जो है, इस कारण से हम प्रॉब्लम फंस जाते हैं। क्योंकि पहला जो है सूत्र जो है, हमेशा हमें बाहर प्रयास करें लेकिन अंदर से प्रयास होना चाहिए। तो कंट्रोलिंग यहाँ नहीं, बाहर नहीं, अंदर। तो इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। इसको भगवान श्री कृष्ण बोलता है, फील्ड वहाँ नहीं है, फील्ड यहाँ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र वित्त विधीयते। एक क्षेत्र है, क्षेत्र है ना फील्ड। दिस बॉडी इटसेल्फ इज योर फील्ड। यहाँ पहले खेलना शुरू करो, इसको ठीक से खेल के यहाँ विजय प्राप्त करोगे तो बाहर भी विजय प्राप्त करोगे। तो वहाँ विजय जब प्राप्त होगा, यहाँ जब विजय प्राप्त होगा, तो तब थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे। हमेशा हमारा मन में इसको विजय प्राप्त करने का मीनिंग क्या होगा? What is the victory? विक्ट्री क्या होता है? सक्सेस क्या होता है? जो मैं सोचता हूं वो होना सक्सेस है? कितने लोग? जो मैं सोचता हूं वो होना सक्सेस है, सच है? नहीं। जो बाकी लोग सोचते हैं उसको होना सक्सेस है। क्या सक्सेस है? सब लोग 10th परीक्षा में 99 होना, 99 पास होना चाहिए, ऐसा सब लोग सोचते हैं, इसलिए उसको होना सक्सेस है। ऐसा नहीं। डिग्री में O ग्रेड प्राप्त होना चाहिए, ऐसा लोग घर में सभी लोग सोचते हैं, इसलिए उसको करना सक्सेस है। कितने भागोगे दूसरों के सक्सेस के पीछे? खुद के लिए सक्सेस क्या है? कभी सोचा है? बाकी सक्सेस माने या ना माने, खुद के लिए सक्सेस क्या है? एक बार सोचो, सक्सेस होता क्या है? मैं बहुत कुछ सक्सेस जीवन में देखा हूँ और बहुत लोगों को देखा हूँ। उसके पास जाकर मैंने पूछा, आपने इतना सक्सेस जीवन में प्राप्त किया, अब क्या चाहते हो? उनको लगता है कि सक्सेस हो गया है, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ कुछ लग रहा है, यहाँ कमी है। आप जाइए अमिताभ बच्चन को पूछिए, उनको भी लगेगा थोड़ा कमी। और जाके आपको लगता है कि धोनी बहुत सक्सेसफुल है, लगता है सचिन तेंदुलकर बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन हर एक के जीवन में सक्सेस का मीनिंग क्या है? एक लेवल में जाने के बाद लगता है सेटिस्फैक्शन सक्सेस है। जब तक खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तक कोई सक्सेस का मीनिंग नहीं है। तो क्षेत्र में, फील्ड में काम करने के लिए हमें जानना जरूरी है क्या सक्सेस है। विक्ट्री इज नॉट सक्सेस। दूसरों के ऊपर वश प्राप्त करना सक्सेस नहीं है जीवन में, नहीं है। खुद के ऊपर वश प्राप्त करना सक्सेस है। जितम जगत्तेन जगत्थियेन। पूरी दुनिया को कौन विजय प्राप्त किया? जो अपने ऊपर जो विजय प्राप्त किया, वही विजय प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन पूछता है कि भगवान, मैंने पूरी दुनिया को हरा दिया। अर्जुन का क्या है? अर्जुन का विक्ट्री का लेवल पता है आपको?
पूरी दुनिया को हराया था उनके सामने कोई नहीं था। लेकिन जब महायुद्ध में खड़ा हो गया तो उनका हाथ कांपना शुरू हो गया। वो खुद अपने आप से भाग रहा था, युद्ध से भाग नहीं रहा था, युद्ध से भाग नहीं रहा था, वो अपने आप से भाग रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था युद्ध में वो उनको गारंटी था युद्ध में विजय प्राप्त कर, क्योंकि सेम जो है वार एक 3 महीने से पहले हो गया था उनका, उस वार में उसका विजय भी प्राप्त हो गया था और सेकंड युद्ध चल रहा था उनके लिए, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको खुद से अपने आप से भाग रहा था। जब तक अपने आप पे आप कंट्रोल नहीं करोगे तब से वो कोई मीन नहीं है। तो पहले हमें क्या जानना जरूरी है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा इंद्रिय, उनका स्वभाव क्या है, मुझे क्या करना चाहिए इसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं, भगवान श्री कृष्ण लास्ट में बोलता है, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने का स्वप्न को छोड़ दो, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति से ही ये जीवन चलता है। You just stop thinking that you can control your body, you can control your mind and you control your thoughts. No, you can't do this. क्योंकि ये सारा प्रकृति है, प्रकृति आपको चलाती है, ना कि आप प्रकृति को चला नहीं सकते। पहले एक अंडरस्टैंडिंग कर लो, इसको समझ लो, एक्सेप्ट कर लो। आप कमजोर हैं, एक्सेप्ट कर लो पहले, अब प्ले करना शुरू। जब तक आप अपनी क्षमता को नहीं जानते हैं, जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, तब तक फील्ड में काम नहीं कर सकते। जब महाभारत युद्ध चला, कौरव में कितने थे आपको पता है? हाँ, जो भी साइज बोलते हैं सैन्य का, 11 अक्षौहिणी सैन्य बोलते हैं, मतलब 11 बटालियन कुछ बोल दीजिए उसको, 11 नंबर बटालियन था उनके पास। और इनके पास कितना था पांडवों के पास? हाँ, 7 या 5 कुछ था, तो 5 था, तो कम लग रहा था इनको। लेकिन इन्होंने क्या किया, हमेशा क्या है, शिवाजी ने युद्ध जीता अफगानिस्तान तक, यहां बैठकर वहां भी युद्ध जीता उन्होंने। इनका जो अपना ताकत को जानता था, अपना कितना वीकनेस है वो भी जानता था। जो अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को दोनों जानता है वही जीत सकता है। जो अपना स्ट्रेंथ नहीं जानता है, जो वीकनेस नहीं जानता है, वो जीत नहीं सकता। जय प्राप्त करने के लिए दोनों जानना जरूरी है, मेरा स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरा वीकनेस कहाँ है। प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के साथ युद्ध करना हमारा धर्म नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमेशा हमें कंट्रोल करता रहता है। देखो, हम यदि सारे और हमारे जब कुछ युद्ध चलता है, सारे और शत्रु आ गए, तो युद्ध में अंदर बैठकर युद्ध नहीं जीत सकते। हम शरीर में बैठे हैं, शरीर के सारे और प्रकृति कंट्रोल कर रहा है, शरीर को प्रकृति कंट्रोल कर रहा है। हम उसमें जाकर हम उसको कैसे यूज करना सीखना है, शरीर को कैसे यूज करना, शरीर के साथ मुझे कैसे अलाइन बनना सीखना है। अलाइनमेंट विद द बॉडी एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट, नॉट कंट्रोलिंग एंड कन्फ्रंटिंग विद दैट। वी आर डूइंग कन्फ्रंटिंग विद दैट, हम कन्फ्रंटेशन में जा रहे हैं, शरीर के प्रकृति के विरुद्ध में जा रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, सुबह 9 बजे कॉलेज में रहना है तो 8:30 बजे उठना है और आधा घंटा में क्लास जाना है। रात को 2-3 बजे तक कुछ तो करते रहना है और एग्जाम आ गया तो पूरा रात को जगना है। और सारे हमारे कब खाते हैं, कब जागते हैं, कब पीते हैं, किसी को पता नहीं। ये जो है, दिस इज नॉट यूजिंग आवर फ्रीडम, बट दिस इज गोइंग अगेंस्ट आवर फ्रीडम। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द पूछा है, सहा हीनस्त्यात्मनात्मानम, श्लोक नंबर 18 में एक श्लोक है। आप अपने आप को आप यू आर गोइंग डाउन, अपने आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ डाउन। एक श्लोक है, मैं बताता हूं आपको, नंबर 28, न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो यान्ति परांगतम्। अपने आप को आप यू आर मेकिंग योर सेल्फ डाउन। क्यों? क्योंकि
बिकॉज प्रकृति का स्वभाव से अलग हम जा रहे हैं। जितना हम प्रकृति के दूर चलते रहेंगे, प्रकृति आपको अटैक करते रहेगा। हम शरीर के प्रकृति के विरोध में जा रहे हैं और हम मन के प्रकृति के विरोध में जाएंगे। मन जो चाहता है वो करो, वो नहीं है। लेकिन मन के प्रकृति क्या है? वो कहीं ना कहीं रात को क्यों सोना है बताइए। यदि दिन में 24 आवर्स है, उसमें रेस्ट का समय 8 घंटा है, मान के चलिए 7 घंटा है, क्यों करना है इसको नहीं करेंगे शरीर का इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए कुछ तो रेस्ट शरीर के चाहिए, इंजन को चाहिए, ऐसे मन को भी चाहिए। आप यदि सो जाएंगे, मन जागृत रहेगा, मन को रेस्ट नहीं मिलेगा सोएंगे, जब सोएंगे तब। जब हम सोएंगे मन को रेस्ट नहीं मिल रहा है, बॉडी को रेस्ट मिल रहा है। मन को यदि रेस्ट मिलना है तो मन को भी कुछ रेस्टिंग स्पेस देना चाहिए। वो रेस्टिंग स्पेस ध्यान है। जब मन को रेस्टिंग स्पेस करेंगे, उसको थॉटलेस बनाएंगे, प्रयासपूर्वक थॉटलेस बनाएंगे, तब होगा हमारा मन शांत होगा। जब मन शांत है, पूरा दिन। एक आदमी ने, एक बहुत सुंदर है, एक कहानी है। बुद्ध के शिष्यों ने एक प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस में गुरुकुल में लड़का बालक आता था, उन्होंने सब हमेशा बोलता रहता था। He was so talkative. कभी भी उनको स्पीचलेस नहीं बना सकते थे। गुरुकुल में एक समय होता है, उसमें व्रत लेना है। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, न्यू ईयर 31 आ गया तो एक रेजोल्यूशन लेते हैं, और 2nd, 3rd डे 4th डे तक जाता है तो मैक्सिमम है, 4th डे खत्म हो जाता है, तो फिर से एक रेजोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा एक होता है, व्रत होता है। उस व्रत में गुरुजी ने बोला, आप कोई व्रत ले सकते हैं जो आप कर नहीं सकते, वैसे आपको चैलेंज होना चाहिए, ऐसा व्रत लेना चाहिए। वो बालक बताया, बहुत अहंकारी था, वो बताया मुझे चैलेंज कोई नहीं हो सकता है, आप बताइए मुझे चैलेंज क्या होगा, वो व्रत में करता हूँ। गुरुजी ने बोला, एक काम करो, मैं जो बोलूँगा करोगे? जरूर करूँगा। गुरुजी ने बोला, ये बहुत कष्ट है। नहीं, ठीक है, मैं बहुत कष्ट जो है वही करूँगा, छोटा मोटा व्रत करने में कोई मीनिंग नहीं है। गुरुजी ने बोला, पहला आप बातें बंद करो। तो गुरुजी ने बोलने के बाद उन्होंने हाँ कर दिया, मैं करूँगा। मौन में चला गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उनको बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग शुरू हो गया। कभी भी उन्होंने जीवन में नहीं सोचा था बातें नहीं करना ऐसा हो सकता है क्या। बहुत चैलेंजिंग रहा, फिर भी बहुत प्रयास किया। और एक दिन रात को गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुजी मैं कुछ आपसे बोलना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है बोलो। उन्होंने कहा, मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं तोड़ दूँ क्या? उन्होंने कहा, इट इज़ योर चॉइस, आप तोड़ सकते हो, व्रत तोड़ सकते हो, लेकिन अगेन इट इज़ योर चॉइस। तोड़ सकते हो, लेकिन तोड़ने के बाद ये सोचो आपको क्या लगेगा आपके अपने आप के बारे में। तो उन्होंने कहा, ठीक है मैं करता हूँ गुरुजी, और एक प्रयास करता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मुझे बहुत यहाँ नॉइज़ हो रहा है, बहुत नॉइज़ लग रहा है, मतलब मेरे जितना भी शब्द है पूरे दुनिया का शब्द यहाँ घूम रहे हैं। तो उन्होंने गुरुजी ने बताया, कुछ ऐसा करो, यहाँ रूम में बंद कर दो अपने आप को, आप चाहे तो बोलते रहो, कोई इशू नहीं। रूम में अपने आप को बंद करके बोलना शुरू किया। शुरू में वो इतना जोर जोर से बोलता था, चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गुरुजी ने बोला, ये बोलने से, अपने आप को खुद बोलने से आपका मतलब व्रत बंधन नहीं होगा, करते रहो। उसके बाद वो बहुत हताश हो गया, क्योंकि अपने आप को बोलने से बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। बाद में गुरुजी ने बोला, एक काम करो, आप एकांत में चले जाओ कहीं। वो चला गया, कभी वापस नहीं आया। 3 साल के बाद लोगों ने सोचा ये मर गया, लेकिन वो वापस आ गया और किसी से बोलता नहीं था, लेकिन बहुत प्रशांत था। वो व्रत प्राप्त करने से, उनका स्पीच जो कंट्रोल करने से, कंट्रोल यानी उन्होंने बात करना बंद नहीं किया था,
लेकिन उनका अंदर का शब्द बहुत शांत हो गया था। लोगों से जब आ गए तो वो सबसे बात कर रहा था, प्यार से बात करता था। लोगों को लगता था ये बहुत ही इनका सुनने के बहुत अच्छा लगता है। पहले उनको सुनने के लिए बहुत बुरा लगता था लोगों को, लेकिन जब वापस आ गया तो उनको सुनने के लिए सब लोग तैयार थे। जो भी बोलता था लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि अंदर का नॉइज़ जो है बाहर करने के लिए हम स्पीच करेंगे तो लोगों को वो नॉइज़ ही सुनेगा, वो कुछ शांति नहीं बनेगी। इसलिए व्रत करने के लिए बहुत मतलब हमें कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हमें अपने आप को थॉटलेस बनाना है, स्पीचलेस बनाना है अंदर से। उसको करने के लिए हमें थॉट्स को रोकना नहीं है, थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। कीप ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। कुछ तो ध्यान का समय स्पेस चाहिए जो मन के लिए शांति मिले। तो इस अलाइनमेंट के लिए हमें प्राणायाम करना है। इस प्राणायाम के लिए आसन करना है। इस आसन के लिए योग है, यही योग है। योग समत्वम योग उच्यते, बैलेंस ही योग है। उसके लिए आहार नियम करना पड़ेगा, आहार के लिए समय रखना पड़ेगा। युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार को ठीक उसके लिए सबके लिए समय निर्बंध करना पड़ेगा, उस सबके लिए बैलेंस रखना पड़ेगा। दिस इज बैलेंस इटसेल्फ इज लाइफ। जितना हम बैलेंस में चलेंगे, जितना हम अलाइन बनाएंगे, उतना सक्सेस रहेंगे। दुनिया में जो भी सक्सेसफुल व्यक्ति है वो अलाइनमेंट के साथ है। आज जो भी हमारा प्रैक्टिस है वो एक्सटर्नल प्रैक्टिस नहीं है, मेरा इंटरनल प्रैक्टिस है। क्योंकि मेरा माइंड, मैं आपके साथ हूँ, मैं यहीं पर हूँ, मैं वर्तमान में हूँ, आपके साथ ही हूँ। मेरा माइंड दूसरी जगह में कहीं नहीं है। एक घंटों तक मैं आपके साथ रह सकता हूँ। How many of you are here? How many of you are out? बहुत मुश्किल है, वर्तमान में रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वर्तमान में रहने के लिए आपको तभी सक्सेस मिलेगा। जीवन में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक ही सूत्र है, आप अलाइन करो, क्षेत्र के साथ अलाइन करो अपने आप को और वर्तमान में रहो। दो ही सूत्र है। फ्यूचर के बारे में कितने चिंतित हैं? बहुत लोग चिंतित हैं। मैं जानता हूँ आप सब चिंतित हैं, आप सब चिंतित हैं। लेकिन मैं जब यंग था, कुछ लोग कोई चिंता नहीं, फ्यूचर के बारे में कोई चिंता नहीं, क्या होने वाला है आगे, जब होगा था ना तब देखेंगे। वो भी है, दो तरीके हो सकता है, लेकिन वो भी बिना चिंता से नहीं है। अभी मुझे जानकारी नहीं है आगे क्या करना है, ये प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है, फ्यूचर में क्या होने वाला पता नहीं, वो भी प्रॉब्लम है। फ्यूचर में क्या करना है वो भी जानता नहीं, इसे भी प्रॉब्लम है। दोनों प्रॉब्लम से बाहर आना है। दोनों प्रॉब्लम में बाहर आने के लिए आपको वर्तमान में फोकस करना होगा। जब यू आर इन प्रेजेंट, फ्यूचर आपको बाधा नहीं करेगी। बेसिकली इसको जानने के लिए हमें क्षेत्र जानना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों इतना डिटेल में क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है? यहाँ देखिए, इंद्रियाणि दशैकंच देन आई नीड नॉट ट्रांसलेट टू यू। इच्छा, इच्छा यानी क्या है? डिजायर, द्वेष, डिसलाइक, डिसलाइक, सुखम हैप्पीनेस, दुखम, दुखम क्या है सबको पता है, चेतना। सी ऑल दिस इज लाइफ एंड ऑल दिस इज योर फीलिंग। ये सब मिलकर एक लाइफ बनता है। लाइफ ही फील्ड है। इस फील्ड में जो जानकार रखने वाला, इस फील्ड के बारे में जो जानता है, वही यहाँ प्ले कर सकता है, विजय कर सकता है। क्षेत्रज्ञ होना जरूरी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? कोई कुछ हो गया तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? कुछ हो गया शरीर में, 3 दिन हो गया, ज्वर कम नहीं हुआ, पेन हो गया, यहाँ पेन हो रहा है, आंख में पेन हो रहा है, क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं? क्यों जाते हैं? ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? मैकेनिक के पास क्यों नहीं जाते? हाँ, मैकेनिक के पास क्यों नहीं जाते हैं? हाँ, एक्सपर्ट है।
डॉक्टर इज एक्सपर्ट ऑफ द बॉडी। तो हमें किसके पास जाना चाहिए? एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। क्षेत्र जानना जितना जरूरी है, क्षेत्रज्ञ को जानना उतना ही जरूरी है। क्षेत्रज्ञ के पास, जो एक्सपर्ट है उनके पास जाओ, वो आपको मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा। एक्सपर्ट के पास नहीं, इसलिए एक्सपर्ट को ढूंढते रहते हैं। मेरे शरीर को मैं नहीं जानता हूं, मुझसे अच्छा वो जानता है, ये मुझे पता है, इसलिए उनके पास जाते हैं। मेरे शरीर को वो देखता है, सारा टेस्ट करने के बाद देखता है, देखो ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ। तो शरीर को जानने के लिए, फिजिकल शरीर को जानने के लिए एक्सपर्ट के पास जाते हैं। लेकिन फिजिकल शरीर मात्र शरीर नहीं है, और मेंटल कंडीशन, सुख दुख, इच्छा द्वेष, ये सारा मिलकर एक एक्सपर्ट बनता है। वो एक्सपर्ट के पास हम जहीं जाएंगे तो ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोलता है, मैं ही एक्सपर्ट हूं, मेरे पास आ जाओ। इदम शरीर क्षेत्रज्ञापि माम विद्धि, मैं हूं एक्सपर्ट, मेरे पास आ जाओ। एक्सपर्ट के पास जाओगे तो रिप्लाई मिलेगा। ट्रीटमेंट चाहिए तो भगवद गीता में ट्रीटमेंट है। जब हम एक्सपर्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लेते हैं, भगवद गीता इज एन एक्सपर्ट प्लेस। एक्सपर्टाइज यहाँ है, क्योंकि बॉडी इज नॉट जस्ट बॉडी, बियॉन्ड बॉडी देयर इज समथिंग विच इज ट्रबलिंग अस। हमें सुख क्यों होता है पता नहीं, दुख क्यों होता है पता नहीं, हमें डिजायर क्यों होता है वो भी पता नहीं है, हमें डिसलाइक क्यों होता है पता नहीं। आप सोचिए डिसलाइक कितना होता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है। आप कहीं जाएंगे, होटल में जाएंगे, और उसमें कुछ भी छोटा सा ऐड हो गया तो अनकंफर्टेबल फीलिंग होकर वहाँ से ये ठीक नहीं है करके छोड़ के आ जाएंगे। तो घर में ऑर्डर होने के बाद कितने लोग छोड़ देते हैं इसको, है ना, छोड़ते हैं, क्योंकि डिसलाइक है, कुछ अच्छा ही लगता है। तो अच्छा नहीं लगना, अच्छा लगना, ये सारे जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जानकार करने के लिए फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना चाहिए। यहां और एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम दुनिया कैसे चलती है, मेरे से हो रहा है, दूसरों से हो रहा है, हम हमेशा सोचते हैं दूसरों से प्रॉब्लम हो रहा है। कितने लोग सोचते हैं ये प्रॉब्लम मैं नहीं हूं, दूसरा है। एग्जाम में ठीक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? टीचर ने पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन ठीक नहीं था, और टाइम आउट ऑफ सिलेबस था, क्वेश्चन ठीक नहीं आया था, और समय नहीं मिला, और उस दिन प्रॉब्लम सुबह जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया तो माइंड डिस्टर्ब हो गया था, और सारा पढ़ के गया था तो माइंड में याद ही नहीं आई। कितने रीजंस है, हाउ मेनी रीजंस? और सक्सेसफुल हो गया तो, बहुत सक्सेसफुल हो गया तो मैं बहुत पढ़ के गया था, और कुछ खराब हो गया तो, और जीवन में बहुत यशस्वी आ गया तो, यशस्वी सक्सेस हो गया तो, और जीवन में कुछ नहीं मिला तो। क्योंकि हम जिस ट्रेन में बैठे हैं, हम सोचते हैं, वैसे तो सोचते हैं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक बैठा हूँ। दूसरा कारण है, दुनिया जो चल रहा है ना, उसमें हम ये नहीं देख पाते हैं क्या वो ट्रेन चल रहा है या मेरा ट्रेन चल रहा है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है। दो ट्रेन में बैठ जाइए, बाजू में दो ट्रेन चल रहा है, कभी कभी वो चलता रहता है, कभी कभी ये चलता रहता है, मुझे पता नहीं चलता कौन सा चल रहा है। इस डिस्टिंक्शन को जानना बहुत जरूरी है। आइडेंटिफाइंग द डिस्टिंक्शन ऑफ हु इज रनिंग व्हाट। आप लास्ट में इस अध्याय में 2 पॉइंट भगवान श्री कृष्ण ने बताया। प्रकृति और पुरुष को समझो। प्रकृति को चलाती है और पुरुष को चलाता है। प्रकृति का रोल क्या है, पुरुष का रोल क्या है? पुरुष यानी ये मत समझो पुरुष है, नहीं, पुरुष यानी पुरुष नहीं है। इसको ये मत समझो कि पुरुष यानी मेल, नहीं। प्रकृति और पुरुष का जो डिस्टिंक्शन है वो यहाँ देखने वाला एक आदमी है और करने वाली कुछ है। यहाँ कुछ फंक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है। दिस इज ऑल रन बाय प्रकृति, दिस ऑल रन बाय प्रकृति। लेकिन जो देखने वाला है, उसको अनुभव कर एक्सपीरियंस करने वाला जो है वो मैं कैसे एक्सपीरियंस करता हूं मेरे हाथ में है, वो प्रकृति के हाथ में नहीं है। क्या होने वाला है वो प्रकृति के हाथ में है।
मैं कैसे एक्सपीरियंस करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं करता हूँ, इसलिए मुझे ही उसको बदलना होगा। मान के जो दुनिया में जो होने वाला है, जो हो गया है वही होने वाला है, वो वही हो गया, क्योंकि मेरा कंट्रोल में नहीं है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना, उसको रीजन बनाना, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसको छोड़ देना, ये दोनों इंटरचेंज है, यही प्रॉब्लम है। इसके लिए दो प्रॉब्लम का, एक तो अलाइनमेंट करना, अलाइनमेंट विद द रेस्ट ऑफ द प्रकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जानने का जरूरत है, कौन क्या कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये जब जानेंगे तब सारा ठीक हो जाएगा। कितने लोग हम मानते हैं मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और इसमें मैं कितना कारण हूँ, दूसरा कितना कारण है। जिस सब्जेक्ट में अभी पढ़ रहा हूँ उसके लिए मैं कितना कारण हूँ, दूसरे कितने कारण है, ये डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। हम हमेशा इस जितने भी रूल श्री कृष्ण ने बताए उसको हर एक लाइफ के हर एक एंगल में हमें उसको अप्लाई करना होगा, जस्ट ऑन अप्लाइंग दिस। तो ये जो एप्लीकेशन ओरिएंटेशन जब करते रहेंगे हमारे क्वेश्चन के लिए उत्तर मिलते रहेंगे। तो अप्लाई एवरी रूल इन योर ओन केस। कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट को पढ़ो, जब कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा तो टेक्स्ट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। जब कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं आपको बोलूँगा कॉन्टेक्स्ट अपना जीवन है, मेरा जीवन मेरे लिए कॉन्टेक्स्ट है, और मेरा जीवन में जितना अप्लाई करूँगा तब उतना मुझे आगे सक्सेस होने के लिए एक रास्ता दिखेगा। एक मनोविज्ञान का पुस्तक, कहानी का पुस्तक था, उसका ऑथर है मीनगुंडी सुब्रमण्यम, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, मीनगुंडी सुब्रमण्यम। उन्होंने कुछ कहानियां बताई हैं जहां साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट होता है, वो डॉक्टर था। उसमें उन्होंने बताया है जीवन में आप जितने भी यहाँ कहानियां हैं, इस कहानी में अनेक वेरियस रोल्स हैं, मतलब अलग अलग कहानी में एक एक रोल आता रहता है। एक टीचर है, एक कोई बहन है, एक सासू माँ है, उनके ससुर है, वगैरह वगैरह, उसमें रोल आते हैं। इन रोल्स में आप अपनी दुनिया में कितने रोल्स देख सकते हैं, उसके आपके ये रीडिंग जो है सक्सेसफुल है। मतलब आप जितने अपने सराउंडिंग में इस रोल को देख सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद आप जितना ज़्यादा रोल्स आइडेंटिफाई करेंगे उतना आपका रीडिंग सक्सेस ज़्यादा है, ऐसा उनका एक सूचना है। यदि सारे रोल्स को वो खुद में देखना शुरू करोगे तो 100% सक्सेस है। जितने भी प्रॉब्लम्स वहाँ दिख रहे हैं कहानियों में, वो प्रॉब्लम्स इफ यू कैन आइडेंटिफाई विद इन योर रोल, देन योर रीडिंग इज 100% सक्सेस। दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम दूसरों में देखते रहते हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से कुछ न कुछ मेरे पास है। ये प्रॉब्लम्स को जस्ट आइडेंटिफाइंग इटसेल्फ दैट डिसअपीयर्स। आपको उसको ट्रीटमेंट करना नहीं है, जस्ट आइडेंटिफाई इट, दिस इज द प्रॉब्लम, देन इट डिसअपीयर्स। आपको वो सारे प्रॉब्लम डिसअपीयर हो जाएगा, जस्ट आइडेंटिफाई। जब खुद को देखो इसमें प्रॉब्लम है तब डिसअपीयर हो जाएगा। जब डिसअपीयर होगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम का सलूशन जो है उसको आइडेंटिफाई करने में है, ना कि ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको बहुत सारे इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इंट्रोस्पेक्शन में लगाता है। यू जस्ट सी विद इन, सी योर सेल्फ एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नॉट विद द रेस्ट, विद द सेल्फ। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करना होगा। इस एक्सरसाइज में आप सक्सेसफुल बनेंगे तब होगा भगवद गीता का रीडिंग का सक्सेस रेट बढ़ता रहेगा। तो मैं इसमें बहुत अंदर अनेक विषय में अंदर नहीं जाऊंगा। इन योर रीडिंग यू कैन रियली एक्सप्लोर मेनी थिंग्स, इवन दोज थिंग्स विच आई डिड नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि मैं यहाँ यही प्रयास किया कि आपके जीवन में यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आइडेंटिफाई करना और प्रकृति और पुरुष के साथ एक रिलेशन। और एक बात मैं बोलकर मैं समाप्त करता हूँ, जब प्रकृति को देखने का जो नज़र है उसको हम कैसे देखना चाहिए? ऐसे देखना चाहिए, प्रकृति इज नॉट अंडर माई कंट्रोल, और मैं कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूँ। प्रकृति मेरे लिए, मुझे प्रकृति कंट्रोल करेगी, ये बात पहले स्पष्ट से एक्सेप्ट करना चाहिए। और रेस्पेक्टफुली प्रकृति को एक्सेप्ट करना चाहिए।
क्योंकि बॉडी से शुरू करके पूरी दुनिया जो नेचर, यानी कोई पहाड़ नदियाँ नेचर नहीं है, एवरीथिंग इज नेचर। नेचर में जितनी वस्तु हैं ये सारे मेरे लिए बने नहीं हैं, मैं उसका पार्ट हूँ। आई एम पार्ट ऑफ दिस होल नेचर, नॉट द होल नेचर इज मेंट फॉर मी। मेरा अप्रोच क्या है आज, होल, मुझे मेरे पुस्तक को कोई यूज़ किया तो थोड़ा सा यूज़ किया तो भी लगता है कि मेरा यूज़ किया, अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है। उसके ऊपर मैं हूँ नहीं, क्योंकि ये दुनिया जो बना है मेरे लिए नहीं बना है। हाउ मेनी ऑफ अस फील दिस, ये दुनिया जो बना है मेरा नहीं है। जब भारत में एक डिस्कशन हो रहा था प्राइवेट स्पेस के बारे में, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन प्राइवेट स्पेस? प्राइवेसी होना चाहिए, एवरीवन, प्राइवेसी कोई नहीं आना चाहिए मेरे जीवन में, क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, कब क्या करता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव इन दैट? प्राइवेसी होना चाहिए। मेरे जीवन का प्राइवेसी में किसी का अंदर प्रवेश नहीं है, हम सब मानते हैं ना इसको, बिलीव करते हैं, इसके लिए लड़ाई करते हैं, इसके लिए इसका नेक्स्ट स्टेज है राइट। फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है? प्राइवेट, प्राइवेसी है। सेकंड लेवल का क्वेश्चन है उसका राइट है, मतलब मेरा प्राइवेसी मेरा राइट है, ठीक है। राइट जब मिलेगा नहीं, फाइट है उसके लिए, हाँ फाइट है। फाइट से नहीं होगा तो खुदकुशी करना है। मुझे मेरे अपने आप को नाश करता हूँ लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। दिस इज द टेंडेंसी। सी प्राइवेसी, प्राइवेट स्पेस यहाँ से शुरू होके जाएगा धीरे 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 अपने आप का अंतर आत्मविनाश के लिए जाएगा। ये हो रहा है दुनिया में, लेकिन प्राइवेट स्पेस में क्या मीनिंग है मैं आपको भगवान श्री कृष्ण को सामने रखकर, भगवद गीता को रखकर बताना चाहता हूँ। क्या होता है प्राइवेट स्पेस? प्राइवेट स्पेस इसलिए होता है मैं अलग हूँ दुनिया से, और ये सारी दुनिया मेरे लिए बनी है, मेरा जितना भी है उसमें कोई किसी का प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरा अधिकार बनता है उसमें, और कोई उसको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो चाहे रूम हो चाहे मोबाइल हो। यस, ऐसा हो। मोबाइल कोई चेक करेगा तो आपको कैसे लगेगा? इंसल्ट लगेगा ना, है ना, और अनकंफर्ट फीलिंग रहेगा ना। ये प्राइवेट स्पेस है, मोबाइल इज ए प्राइवेट स्पेस, मोबाइल इज ए प्राइवेट स्पेस। माँ भी चेक नहीं कर सकती, पासवर्ड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, फेस प्रोटेक्ट करता है उसको, है ना, फेस से प्रोटेक्शन होता है। मुझे देखेगा तो, और इसको कट करता है, नंबर है, बहुत कुछ है। तो देखिए प्राइवेट स्पेस जो क्रिएशन है, इट्स अ क्रिएशन ऑफ द वेस्ट, क्रिएशन ऑफ द वेस्ट। ये भारत की नहीं है, ये अवधारणा भारत की नहीं। दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम द वेस्ट। कितना प्राइवेट स्पेस है मैं बताता हूँ। वेस्ट में अभी यूएस गया था, वहाँ के बच्चों को मतलब माता पिता के विरोध में कंप्लेंट करने का अधिकार है, जस्ट एक बटन है, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं रहता है, वो नंबर बटन कर दिया तो दोनों माँ बाप को लेके जाते हैं, तो अगले दिन खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा घर में। तो ये सिचुएशन है अमेरिका में, दिस द सिचुएशन, ये फैक्ट है। तो उस बच्चे को स्टेट लेके जाता है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब क्या हो गया, पूरी दुनिया को रन करने के लिए स्टेट चाहिए, कानून चाहिए। तो प्राइवेट स्पेस को क्रिएट कर दिया, प्राइवेट स्पेस के आधार पर राइट क्रिएट कर दिया, ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स के आधार पर पूरे दुनिया में एक क्रांति का माहौल कर दिया, तो डिवाइड कर दिया लोगों को। लेकिन भगवद गीता के आधार पर यदि देखेंगे तो पूरा आत्मा है यहाँ पर, मैं और तुम अलग अलग नहीं हो। दिस इज डिफरेंट परसेप्शन। हम प्रकृति के साथ में दूर नहीं हो सकता हूँ, प्रकृति मेरे लिए नहीं बनी है, मैं प्रकृति का अंग हूँ। आई एम पार्ट ऑफ इट, आई एम पार्ट ऑफ इट। ये फैमिली के पार्ट हूँ। मेरे फैमिली में कोई प्राइवेट स्पेस नहीं रहता है, क्योंकि फैमिली में मैं पार्ट हूँ। सबके लिए रेस्पेक्ट करते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं। दिस काइंड ऑफ फैमिली फीलिंग जो है, ये प्रकृति के साथ, फैमिली फीलिंग के साथ जीने का जो दिया है वो भारत का देन है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, मैं परिवार में एक अंग मात्र हूँ। परिवार मेरे लिए नहीं बना है, मैं परिवार के लिए बना हूँ। ये भाव, द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड इज द फीलिंग ऑफ ए परिवार। ये परिवार भाव जो जागृत किया है, इसलिए आज भारत में 140 करोड़ जनसंख्या बहुत
आनंद से जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली एक स्ट्रक्चर है। फैमिली स्ट्रक्चर को हमने कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन है दुनिया के, किसी कोई देश का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम उसको फैमिली को तोड़ कर प्राइवेट स्पेस में उसको काट रहे हैं वेस्ट के कारण से। मैं आपको इतना यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, ये इसको केवल फैशन के रूप में मत देखिए, लेकिन इसमें इसके पीछे बहुत बड़ा दुख का दुनिया है, नर्क है। अमेरिका कैन बी सीन एज ए वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी, लेकिन इट्स ए नरक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति वहाँ नरक में जी रहा है, क्योंकि उनके लिए प्राइवेट स्पेस प्रोटेक्टेड है, लेकिन उनके लिए कोई दुनिया ही नहीं बचा, केवल अकेला बच गया है। नो पॉइंट इन लाइफ। मैंने देखा है लोगों को, वो उनका लाइफ के लिए कोई मीनिंग ही नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आज भगवत गीता में जो बताया है, आत्मा जो है एक व्यक्ति नहीं है, आई एम नॉट इंडिविजुअल। आत्मा इज सच दैट इट इंक्लूड्स एवरीवन, इट इंक्लूड्स एवरीवन। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मुझे यहाँ आने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। कोई मुझे इन्विटेशन दिया इसलिए आया नहीं, मुझे लगता है मैं आप सबके साथ एक कनेक्ट होना चाहता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। इट इज जस्ट टू कनेक्ट माई सेल्फ। इज नथिंग, आप सेपरेट करना तो मुझे आसान है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए आया हूँ। तो दिस काइंड ऑफ बॉन्डेज है ना, ये भारत का है, इसको कोई कुछ नहीं दे सकता। इस भारत का देन है, ये भगवद गीता का देन है। तो हम अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखेंगे, तो पूरे भारत से नहीं, पूरी दुनिया के साथ, पूरे प्रकृति के साथ एक अंग के रूप में, आत्मा के रूप में हम खड़े हो जाएंगे। तब परसेप्शन बदलता है। मैं हर एक वस्तु के साथ मेरा व्यवहार बदल लेता है। मैं आपको बताता हूँ, नाउ ऑनवर्ड्स द डे यू जस्ट चेंज योर परसेप्शन। आप अपना खाने का डिब्बा ओपन करके जब खाते हो, उस खाने के प्रति भी आपका परसेप्शन बदल जाए। ये जो है मैं खा रहा हूँ, ये केवल वस्तु नहीं है, एक ईश्वर का स्वरूप है। ये भी मेरे लिए नहीं बनी है, ये मैं इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब भाव हो जाता है। जब हो जाएगा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न जब ब्रह्म बनेगा तो आप खुद ब्रह्मत्व की ओर जाएंगे। आप सोच लीजिए, छोटे छोटे दृष्टि भी हमको दुनिया में बदल जाती है। छोटे छोटे दृष्टि है, परसेप्शन है, उसको जीवन बदल लेता है। वो जीवन बदलने से आप जीवन में चाहे इंजीनियर बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, पायलट बनोगे, लेकिन अच्छे एक इंसान बनोगे तो बहुत बढ़िया है। उससे ज़्यादा कोई नहीं है, उससे ज़्यादा कोई नहीं। आज भी बड़े बड़े लोग इसलिए बड़े बने हैं, आप सोचोगे इसलिए बड़े बने हैं क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं। आज चाहे बड़े बड़े प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, बड़े बड़े देश के, आप चाहे नरेंद्र मोदी जी को देखिए, चाहे आप इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को देखिए। वो इसलिए प्रधानमंत्री केवल पॉलिटिकल प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, पॉलिटिकल स्टेट के लीडर नहीं बने हैं, वो खुद अच्छे इंसान हैं, इसलिए वहाँ तक गए। जो पूरे दुनिया से कनेक्ट कर सकता है, तो पूरी भारत से कनेक्ट कर सकता है, वही वो कर सकता है ये काम। तो इसलिए आप सबको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए कनेक्ट करना, जो बात करते हैं ना, वो कनेक्शन जो है आत्मा का कनेक्शन है। दुनिया को कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके आधार पर आप जो करेंगे वो बनेंगे। जो बनना है, क्या करना है, वो आप सोच लीजिए, लेकिन पहले दृष्टि, भगवद गीता को दृष्टि को अपनाएं। धन्यवाद।